Well, hello students. Now we're going to see this question. The question says that a square loop is carrying a steady current I, okay, and has a magnitude of magnetic dipole moment as m, small m, okay. If the square loop has been changed to a circular loop and it carries the current, okay, the magnitude, it carries the same current basically. The magnitude of the magnetic moment of the circular loop will be, okay. So firstly, what we have to do over here, we have to simply do the area thing. That is, firstly we have to check out that I'll explain you the sum firstly, that there is a square loop, okay, which is transformed into a circular loop, okay. So this square loop is transformed into the circular loop, means both perimeters will be same, okay, means both their perimeters will be same. Got it? Because it is the same, basically same loop, okay. So now we'll start our question, that the magnetic moment of the square loop, magnetic moment of square loop is basically given m is equal to n into I into a. We all know this is the formula, okay. So we are gonna use it now. Let's suppose the side of the square is basically a, okay. Let's suppose it, because it's not given in the question, we'll consider it as a. So what will be the area basically? Since there is only one turn, so m will be equal to 1 into I into area, which is equal to a square. So what we'll get, m will be equal to I into a square. We'll leave it like this for right now and we'll name it equation number 1, okay. Now we are going to see for the circular loop, magnetic moment m dash, let's suppose, of the circular loop, okay, let's write it, m dash will be equal to n into I into a again, but over here area is changing, okay. So it will be m into m will be equal to, so m dash, basically m dash will be equal to 1 into I into a will be equal to pi into r square, okay. But we have to find r over here. What will be the perimeter of this square? Basically perimeter will be equal to 4 into a, okay. So the area, so basically how we'll find r now? Now finding r, to find r, okay, what we have to do, basically we have to do 4a must be equal to 2 pi r, okay. We are equating the perimeter and circumference. Circumference of the circle is what? Basically 2 pi r, okay. And basically they are of same wire, so basically we have to equate it. So from here we'll get r will be equal to 2a by pi, okay. Simply we got r, so we will place this r over here. It's quite easy right now. So what we'll get basically, so m dash will be equal to I into pi into 2a by pi whole squared, okay. So this will be equal to I into pi 4a square by pi square, okay. So pi square, since there is a pi square down, okay, and there is a pi up, so 1 pi will get cancelled from here, okay. So we will be left with 4 into I into a square divided by pi, okay. So if you see over here from this equation number 1, m is equal to I into a square, so we will replace it over here, okay. So now we will write from 1, what we will have, basically m dash must be equal to 4 into m by pi, okay. So this is basically our answer. So our answer will be option number A. Got it? Thank you. Hello students, welcome to Doubtnut. Our question is, an infinitely long current carrying wire and a small current carrying loop at the plane of the paper is shown. If the radius of the loop is a and distance of center from the wire is d, where d is very greater than a, if the loop applies a force F on the wire, then we have to find the forces proportional to which quantity. These are our 4 given options. So this is our infinite wire and this wire is acting some force on this loop, so we have to find the force is proportional to. So we know that if this is our infinite wire, at the point x the magnetic field is mu naught upon 4 pi into 2I by x.
this is the magnetic field at any point x from the infinite wire, where I is the current flowing in the it. Now we have to discuss about the force. Our force is equals to magnetic moment m into dv by dx, or this is also called the gradient of magnetic field. The magnetic moment of this ring m is equals to I into A. So this is equals to m I into A into d by dx of mu naught upon 4 pi into 2I by x. So from here, this area can be written as pi r square, and radius is given to us, that is equals to a. So this is equals to I into pi a square, and derivative of this term is mu naught upon 4 pi into 2I by x square with minus sign. And also the value of x is given to us, that is equals to d. So now if we calculate the proportionality, that is force is equals to I into pi into mu naught upon 4 pi into 2I into a square by d square. So from here our force is proportional to a by d whole square. So these are the quantities on which our force depends. So from here our correct answer is option B, force is proportional to a by d whole square. Thank you. हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन गिवन है कि एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर है. एक करंट कैरिंग कर रहा है 1 ऑफ 12 एम्पियर इज प्लेस्ड ऑफ डिफरेंट ओरिएंटेशन एज शोन इन फिगर. ठीक है, 12 एम्पियर का करंट है इसमें और डिफरेंट ओरिएंटेशन कैरी कर रहा है, जैसे फिगर में हमें शो किया गया है. फिगर है आपका. ठीक है, कह रहा है कि इफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला. ठीक है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है 0.3 टेस्ला का इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में गिवन है. तो इन व्हिच ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ द लूप वुड बी इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. तो इन चारों में से कौन सा लूप हमारा है जो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा. ये चार ऑप्शन है, ए बी सी डी में से कौन सा है रिस्पेक्टिवली हमें बताना है. ठीक है, तो हमें पता है कि स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है, हमें कैसे पता चलता है, पोटेंशियल कि वो कितना पोटेंशियल एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर रहे हैं. ठीक है, कि जो कि जिसकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी वो स्टेबल होगा और जिसकी मैक्सिमम होगी वो अनस्टेबल होगा. ओके, यहाँ से ये होगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर जो है वो बताता है आपका कौन सा स्टेबल है. तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हमारी, वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है हमारा माइनस m डॉट बी. ओके, जो कि आपका होगा, अगर उसके साथ लिखें हम लोग तो ये हो जाएगा एम बी कॉस थीटा. ओके, ये होता है आपका एम बी कॉस थीटा, इसका मॉड लें अगर तो. ओके, माइनस के साथ. अब हम डिफरेंट केसेस में अगर थीटा देखें तो थीटा फर्स्ट वाले केस में थीटा कितना है हमारा एम एंड बी के बीच में, यहाँ पे थीटा 1 कितना है, देखिए थीटा 1 ले लें तो ये 90 डिग्री है. थीटा 2 इसके लिए कितना है हमारा करंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे थीटा हमारा कितना है, ये आपका 0 डिग्री है. थीटा 2 ले लेते हैं यहाँ पे. तो इस सिमिलरली थीटा 3 यहाँ पे कितना है, ये भी 90 है. और थीटा 4 कितना है, ये अगर थीटा 4 लें तो यहाँ पे देखिए इसका क्लॉकवाइज था, एंटी क्लॉकवाइज जो था, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गई तो आपका कितना होगा, 0 का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा. सो हमारे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, दैट देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी U1 क्या होगा, U1 के लिए 90 डिग्री है तो U1 आपका 0 हो जाएगा सिंस थीटा 1 जो है आपका 90 डिग्री है. एंड U2 क्या होगा आपका, थीटा 0 है तो आपका माइनस एम बी आएगा. ओके, क्यों, सिंस हमारा थीटा 2 जो है 0 डिग्री है. ओके, सिमिलरली U3 आपका क्या आएगा, U3 आपका आएगा हमारा थीटा कितना 90 डिग्री, यू भी 0 आ जाएगा सिंस थीटा 3 आपका 90 डिग्री है. और U4 कितना आएगा आपका, ये प्लस एम बी आएगा सिंस थीटा 4 आपका 180 डिग्री है, क्योंकि cos 180 माइनस 1 होता है. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है U2 सेकेंड वाले केस में, एंड मैक्सिमम आ रहा है हमारा
फोर्थ वाले केस में इसका मतलब हमारा जो है सेकंड वाला जो है क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, एंड फोर्थ वाला जो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमें है, ऑप्शन ये जो होगा बी वाला, ये होगा आपका स्टेबल होगा, एंड फोर्थ वाला क्या था हमारा, फोर्थ ये था, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। ओके, कौन से ऑप्शन में बी एंड डी रिस्पेक्टिवली दिया है, ऑप्शन सेकंड में आपको दिया है बी एंड डी रिस्पेक्टिवली। ओके, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई करंट कैरिंग लूप है जिसमें आई करंट फ्लो करी है, एक्स वाई प्लेन में वो रखा हुआ है। ओके, अब कह रहा है कि यूनिट वेक्टर है के कैप इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, जो यूनिट वेक्टर है वो के कैप क्या है, आउट ऑफ द प्लेन है। अब कह रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा इस लूप का, ये हमें क्या करना है, बताना है। ओके, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक मोमेंट ये क्या होता है, आई इंटू ए होता है। ओके, तो इसका जो एरिया आएगा वो के कैप डायरेक्शन में आएगा। तो अब एरिया देख लीजिए इसका, तो क्या होगा, तो इसके बीच में ये हमें एक स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक स्क्वायर दिख रहा है, तो उसकी एरिया क्या हो जाएगी, उसकी एरिया हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे कितने सर्किल हैं, 2 सर्किल हैं, तो 2 सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है, a/2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2 पाई ए स्क्वायर बाई 4। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास, अगर यहाँ से हम क्या करें, ए स्क्वायर कॉमन ले लें, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 प्लस पाई आएगा केवल, नॉट पाई स्क्वायर, 1 प्लस पाई बाई 2। ओके, 4 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बच जाएगा यहाँ पे, तो ए स्क्वायर की ये वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो क्या होता है, आई इंटू ए, एम इक्वल्स टू आई इंटू ए, तो ये कितना आ जाएगा, आई इंटू ए स्क्वायर 1 प्लस पाई बाई 2 के कैप, ये हमारा आ जाएगा इस लूप के लिए मैग्नेटिक मोमेंट। तो अगर हम इसे अपने ऑप्शंस में मैच करें तो बी ऑप्शन क्या कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, A current carrying loop is placed in a uniform magnetic field in 4 different orientations. The 4 orientations are given here. See, 1, 2, 3 and 4. So among these 4 orientations, you are supposed to arrange it in the decreasing order of potential energy. So when a current carrying loop is placed in a magnetic field, we know that there will be a potential energy which consists of the expression like U. The expression will be U will be equal to minus mb cos theta. This is the expression for potential energy. So in this expression you can see m is the magnetic moment, b is the magnetic field, and theta is the angle, the orientation between them. So now when you see to this, in this equation, if U has to become maximum, if potential energy is maximum, then what should be this angle theta? This theta should be equal to 180 degrees. See, because cos 180 is minus 1, right? So cos 180 degrees will be equal to minus 1. And if this becomes minus 1, U becomes mb, which is a maximum value. So similarly, if this has to become minimum, if potential energy is minimum, what should be the value? See, theta should be equal to, you can say it as 0 degree. So if theta is 0 degree, cos 0 will be how much? Cos 0 will be 1. And if cos 0 is 1, you can say U will be equal to minus mb. So this is the minimum value of potential energy, and plus mb is the maximum value of potential energy. So you can say that potential energy decreases from 180 degrees to 0 degrees. So the maximum value will be at 180 degrees and minimum value will be at 0 degrees. Now see to the diagram what you have, and you can observe the angles on all of the cases. You can see here in the first diagram what will be the angle. The first diagram you have the angle like theta will be equal to 180 degrees. Correct? And now when you see this is 180 degrees. When you see to this angle, this is an acute angle, you can say. Okay, you have acute angle. And in this is 90 degrees. And here the angle between them, here this will be obtuse angle. So you can say the maximum among these orientations, how much it will be, the maximum value it will be with respect to this 180 degrees, right? Because
you can see in this equation we have substituted potential energy is maximum at 180 degrees. You are supposed to write it in the decreasing order of potential energy. So maximum potential energy is at 180 degrees. So I can say option 1 will be the first one. Next, we have to see to the next one. So from 180, it goes on decreasing. From 180, the next thing it will decrease is with the obtuse angle. So next will be the fourth diagram. Fourth one. Next, when you see to it, next it comes to 90 degrees. So 180 to obtuse, then to 90 degree. So 90 degree will be the choice 2. And the last one comes out to be acute angle. So the choice 3. So 1, 4, 2, 3 is the correct decreasing order of frequency. So now among C to the options you have 1, 4, 2, 3. This will be the right answer. इस क्वेश्चन में हमारे को कहा कि एक पार्टिकल है जिसका चार्ज क्यू है, मास एम है, वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है जिसका आर रेडियस है और एंगुलर स्पीड ओमेगा गिवन है उस चार्ज की। अब हमारे को क्या फाइंड करना है? हमारे को फाइंड करना है इसका मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है इस रोटेटिंग क्यू चार्ज का और इसका एंगुलर मोमेंटम का रेशियो। अब ये दोनों एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है और इनका रेशियो फाइंड करना है। इनके रेशियो की डिपेंडेंस बतानी कि इनमें से हमारे रेशियो की डिपेंडेंस इनमें से किस किस पे है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है हमारा I इंटू ए होता है एक किसी भी रिंग के लिए। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या एक रिंग नहीं, एक चार्ज क्यू है। अगर एक क्यू चार्ज है, अब रिंग में क्या होता है, चार्ज मूव कर रहा होता है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से, मान लो क्यू चार्ज पास करता है तो हम उसका करंट कैसे लिखते हैं? हम करंट लिखते हैं क्यू बाई टी। अभी इस रिंग के केस में भी वही है, ये हमारा आई है, तो इस रिंग के केस में हमारे को डायरेक्टली आई नहीं दिया हुआ है, हमारे को कहा है कि कोई चार्ज क्यू है जो पास हो रहा है। अब चार्ज क्यू किसी टी टाइम में से पास हो रहा था, हमारा करंट क्या हो जाएगा? क्यू बाई टी हो जाएगा। अब ये क्या करेगा? ये एक रिंग की जैसे बिहेव करेगा, रोटेटिंग चार्ज जिसमें है ना क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है टी टाइम में, तो क्यू बाई टी यानी आई करंट फ्लो कर रहा है एक रिंग के अंदर, सेम वैसे बिहेव करेगा। उस केस में आई क्या लिख देंगे हम? आई लिख देंगे हम क्यू बाई टी। एरिया क्या हो जाएगा? अगर ये आर रेडियस के इस पे घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट पे, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। ये इसका एरिया हो गया, यानी टोटल ये जो पूरी की पूरी टर्म हो गई, ये क्या हो गया? हमारी मैग्नेटिक मोमेंट हो गया ये हमारा। अब इसमें देखते हैं कि अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या टी की वैल्यू नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? टी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। यहाँ पर हमारे को क्या गिवन है? स्पीड गिवन है। अब 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है चार्ज कितने टाइम में? ओमेगा की 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, या फिर हम कहें कि 2 पाई एंगल ट्रेवल कर रहा है किस स्पीड से? ओमेगा की स्पीड से। तो ये हो जाएगा हमारा टाइम हो जाएगा, ये हमारा टाइम हो जाएगा। और ये अगर हमारा टाइम है तो हम अपने टाइम की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आएगा मैग्नेटिक मोमेंट हाफ क्यू ओमेगा आर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक मोमेंट हो गया ये हमारा। अब हम क्या करते हैं? एंगुलर मोमेंटम फाइंड करते हैं। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एक पार्टिकल का वो होता है एम आर स्क्वायर ओमेगा, सेंटर के अबाउट, जिस सेंटर के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, ये उसका एंगुलर मोमेंटम हो गया एम आर स्क्वायर ओमेगा। अब हमारे को क्या करना है? रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो में क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक टाइम लिख लेते हैं, वो कितनी? हाफ क्यू ओमेगा आर स्क्वायर, और दूसरा जो जिसके साथ रेशियो लेना है मतलब वो लिख लेते हैं एम आर स्क्वायर ओमेगा। अब इसमें से क्या करते हैं? कॉमन टर्म्स को कैंसिल कर देते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्यू बाई 2m। ये हमारा रेशियो हो गया। अब हमारे को बताना है कि हमारा जो ये रेशियो है किस किस पे डिपेंड कर रहा है, तो वो क्या किस किस पे कर रहा है? क्यू बाई एम पे। तो हम देखते हैं हमारा सी ऑप्शन एग्जैक्ट मैच है, क्यू एंड एम पे डिपेंडेंस है। तो क्वेश्चन में दे रखा है एक कंडक्टिव सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस आर है, करंट कांस्टेंट करंट आई फ्लो कर रहा है, यानी कि हमारे पास एक सर्कुलर लूप है और करंट फ्लो कर रहा है आई। हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेट कर लेते हैं, करंट आई फ्लो कर रहा है, एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है बी नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। हम लेट कर लेते हैं ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो मैग्नेटिक फील्ड है। तो हमें निकालना है कि मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप। सो हमें मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है आई डी एल क्रॉस बी वेक्टर होता है। आई हमारा है, हम इलेक्ट करते हैं कि हम इस एरिया में निकालते हैं, ये हमारा है डी एल,
एंड डायनेमिकली इधर निकालते हैं डीएल। सो फोर्स की डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल होगी एफ को इसके आई, अगर हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, बी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा तो फोर्स हमारा लगेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, एंड इधर भी लगेगा फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में। दोनों साइड हर पॉइंट पे ऐसे ही होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा फोर्स, नेट फोर्स होगा हमारा, साइड डायरेक्शन फोर्स की है ये, फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा तो हर इसको कैंसिल आउट करेगा, इक्वल फोर्सेज हैं सब कैंसिल करेंगे, सो नेट फोर्स हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। Hello everyone, let us start with our question. In this question, what is given? That figure shows a circular loop of radius A with two parallel wires all in the same plane of the paper. So this is a loop, okay, of radius A, and these are two wires and they are in the same plane. Now the distance of each wire from the center is given as to be D. Okay, this is the distance from the center. The loop and the wire are carrying the same current I. Okay, now the current in the loop is in the counterclockwise direction. Here the current we know that it is in the counterclockwise direction, and when we are seeing it from the above, magnetic field at P due to the current in the wire are in the opposite direction. So basically this is not concerned. Now when D is close to A, okay, when D value is close to A but the wires are not touching the loop, it is found that net magnetic field on the axis of the loop at a height h above the loop is 0. Now in that case we need to find what is the direction of the current in the wire, whether it is from P to Q or Q to P, or in this wire from S to R or R to S, and also we need to find what is the relationship between H and A. Okay, now here, now because we know that magnetic field due to this current carrying wire, okay, we know that due to a circular loop it is along the axis, okay, so the current is in the clockwise direction, so magnetic field due to this wire would be out of the plane of paper. Okay, so if we draw this situation, let us just draw this situation. So we say that it would be viewing just like a triangle, we can just draw it like this. Okay, now what is the thing? Now the due to this wire, so this loop is placed here, so due to this wire, because it current is going in the this counterclockwise direction, so that magnetic field would be coming out of the plane of paper. That means this is the direction of the magnetic field due to the loop. Okay, now if we want to make the net magnetic field here to be 0, now what should be the direction of the magnetic field? So the direction of the magnetic field due to the wire should be in the downward direction. Net should be in the downward direction. So how can net be in the downward direction? For example, this is wire 1, okay, and this is wire 2. How can the net be in the downward direction? It can be in the downward direction when this magnetic field due to 1 is in this direction and magnetic field due to 2 is in this direction. This is B1 and this is B2. Then only we can have net magnitude in the downward direction. Okay, because the component, if we say that this angle is our theta and this angle would be theta because it is the symmetric location, so here the component would turn out to be let's say this is due to loop, or we can say that this is due to circle. Then here the component would be B1 cos theta plus B2 cos theta, and the parallel component or the horizontal component would get cancelled. Okay, so the net magnetic field to be 0, this magnetic field and the resultant magnetic field should be equals to 0. Okay, if this is the condition, okay, now what should be the direction of the current in the wire 1? So the direction of current in the wire should be from P to Q. It should be P to Q. Why? Because when we are getting the direction of magnetic field, then only it could get in the downward direction, because if we curl our finger with thumb in this direction, then our fingers will point in the downward direction. Okay, now to get magnetic field in the downward direction from S to R, what should be the direction? So the direction of current should be in S to R, so that we could place our finger thumb in this direction, then our curling of the finger would be in the downward direction. That means our current direction here would be from P to Q and here would be S to R. So P to Q, S to R. So this could be correct, this could be correct, and our C option could be correct, but D option cannot be correct option because here it is given as R to S. Now, having said that, so we are just drawing a diagram for the resolved component of the magnetic field. Let us draw. So this is our magnetic field due to the coil. So this would be the net magnetic field due to these two wires. So this is the horizontal component of the magnetic field due to one wire, and this is the horizontal component of the magnetic field due to the another wire. So what are the different values? So it is magnetic field due to the this circle. It would be here component would be due to B1, it would be B1 cos of theta, and due to B2 it would be B2 cos of theta. Okay,
Now here the component would be horizontal would be b1 sine theta, and here it would be b2 sine of theta. So for the net to be 0, there should not be any magnetic field in the horizontal and the vertical direction. So we can say that our b1 sine theta should be equals to b2 sine theta. Okay, that means our b1 should be equals to b2. This is one of the condition. Similarly, we can say that in the vertical direction, we can just write the equation. So bc would be equals to 2 times, we can just say, because we know that b1 and b2 would be equals, so we can say that b due to this circle should be equals to b1, or we can say that b1 or b2, anything, into cos theta. Okay, now let us check what is the magnetic field due to the circle. So for example, let us say that because we have been given that this d is basically approximately equals to a, so we can say that in our triangle here, we can say that this distance to be a, this distance to be a, and this is basically the height, which is h. So what would be the value of the hypotenuse? So it would be a square plus h square in the square root. Okay, now we can put the value of the magnetic field due to the circle. So it is equals to mu naught I a square radius square divided by 2 times radius square plus the distance square. So distance is h square to the power 3 by 2. Now due to the this is not 3 but it is 2. Now due to the this straight wire, it is equals to mu naught I divided by 2 pi and the distance. So what is the distance from here to here? It is root a square plus h square. So it would be a square plus h square in the square root, that we can take power to be 1 by 2. Okay, multiplied by cos theta. So what would be the value of cos theta? If we can see cos theta, it would be a divided by a square plus h square. So into a divided by a square plus h square, and that would be in the square root 1 by 2 power. Okay, now if we solve this, then we can say that mu naught I a square divided by, we can say that 2 a square plus h square to the power 3 by 2. This value would be equals to mu naught I into a divided by what? Divided by pi a square plus h square, because this is power 1 by 2, this is power 1 by 2. Now if we solve this, then our h value would turn out to be approximately equals to 1.2a. Okay, this is the value of our h. This should be our h height. So which option would be the correct option? If you can, this is our h and not p. Okay, approximately 1.2a. So which option could be correct? So we see that our correct option would be our C option, because here it is h is equals to 1.2a. This is wrong, because here h is a, here h is a, and here the direction of current which was given is wrong. Okay, so correct option would be our C option. So hope you have understood this solution. Thank you. इस क्वेश्चन में दिया गया है कि फिगर शोज अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर ऑफ रेडियस ए. कोई वायर है, सर्कुलर लूप है, जिसकी रेडियस क्या है ए, जो 2 लॉन्ग पैरेलल वायर के बीच में रखा हुआ है, नंबर 1 और नंबर 2. ऑल इन द प्लेन ऑफ पेपर, सारे क्या रखे हैं? प्लेन ऑफ पेपर में रखे हुए हैं. द डिस्टेंस बिटवीन ईच वायर एंड लूप, सेंटर से जो लूप के डिस्टेंस दी गई है वायर की, वो कितनी दे रखी है? स्मॉल डी. द लूप एंड द वायर आर कैरिंग सेम करंट, दोनों में क्या हो रही है? सेम करंट फ्लो कर रही है. द करंट इन द लूप इज इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो करंट फ्लो कर रही है लूप में वो क्या है? काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है. तो फर्स्ट हमें ये बताना है व्हेन d इक्वल्स टू a. ओके, जब d बहुत स्मॉलर देन, मतलब सिमिलर टू a है बट नॉट टचिंग द लूप, it is found that net magnetic field on the axis of the loop is just 0. जो एक्सिस ऑफ द लूप है वो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है. एट हाइट h हाइट क्या लिया जा रहा है? अब लिया जा रहा है. तो कौन सी कंडीशन में ये होगा? h की वैल्यू क्या होगी अप्रोक्सीमेटली, ये हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले क्या करते हैं कि वायर को h हाइट पे ले लेते हैं, ये जो सर्कुलर लूप है, और उसके ऊपर क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं. तो इसके लिए क्या करते हैं? एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये हमने रफ फिगर ड्रॉ कर लिया. ये वायर 1 है, ये वायर हमारा क्या है? 2 है, और ये इस वायर का सेंट्रल पॉइंट है. तो हमने एज्यूम कर लिया कि इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इस डायरेक्शन में लग रहा है. ये क्या है? B1 है, या B2 भी मान सकते हैं इसको, B या B2 ही मान लेते हैं. और इस डायरेक्शन में जो लग रहा है ये क्या है? B1 है. ओके, तो ये जो हमारा एंगल है ये क्या है? थीटा है, और ये भी एंगल क्या है हमारा? थीटा है. ओके, तो इस डायरेक्शन में जब हम रिजॉल्व करेंगे तो
ये जो बीच में एंगल आएगा, ये वाला एंगल कितना आएगा, ये 90 माइनस थीटा आएगा। ओके, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से b1 को जब रिजॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी इस डायरेक्शन में, इस लाइन पे हमारी वैल्यू आएगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इस लाइन पे आएगा b1 cos थीटा प्लस b2 cos थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, और ये हाइट हमारी क्या हो गई, h हो गई, और यहाँ अंडर रूट में ये जो डिस्टेंस आ जाएगा a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर के क्या होगा, इक्वल आ जाएगा। और इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करने पर ये हमें कितना मिलेगा, ये खुद का जो सर्कुलर रिंग होगा उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। और यहाँ क्या आएगा b1, ये क्या आ जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा b2 साइन थीटा। ओके, तो ये b1 जो है इसके जब इक्वल हो जाएगा तभी हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसने बोला है कि लूप पे उस पॉइंट पे एक्सिस पे क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो b होगा वो कब इक्वल हो जाएगा, जब ये b1 cos थीटा प्लस b2 cos थीटा के जब इक्वल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। और दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2b1 cos थीटा भी लिख सकता हूँ। ओके, रिंग की वजह से फोर्स अपवर्ड, क्योंकि उसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करी थी, इस वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो ये जो दोनों जब इक्वल हो जाएंगे तो इस कंडीशन में हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा जीरो हो जाएगा एक्सिस पे। अब यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड उसके लिख सकते हैं कि b1 क्या होगा, तो वायर की वजह से क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में ये आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट आई, ये सर्कुलर कॉइल की वजह से है। ओके, हम क्या कैलकुलेट करें, सर्कुलर कॉइल की वजह से पहले कैलकुलेट करें। तो सर्कुलर कॉइल से एट अ डिस्टेंस h हाइट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन में क्या होता है, अपॉन में 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस h स्क्वायर के पावर 3/2 होता है। ओके, ये रिंग की वजह से होता है, जो सर्कुलर कॉइल होता है उसकी वजह से होता है। और साथ ही में हमारे पास ये वैल्यू b की होती है, तो इस b को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ओके, ये हमारी वैल्यू हो गई। ओके, इसको हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी, एक मिनट, तो ये वैल्यू हमारी क्या आ गई, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस h स्क्वायर के पावर क्या हो गया, 3/2। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा आया ये रिंग की वजह से होता है, इक्वल्स टू 2 इंटू, अब वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है एट अ डिस्टेंस h वो क्या होता है, तो ये होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, और r की वैल्यू कितना है, ए स्क्वायर प्लस h स्क्वायर के क्या है, इक्वल है। ओके, तो ये हो गया हमारा इसकी वैल्यू इनटू cos थीटा की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, ये क्या होता है, ये बेस a है, हाइपोटेनियस कितना है, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो यहाँ से हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं, तो 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस h स्क्वायर के पावर क्या आ जाएगा, 3/2, ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी म्यू नॉट आई ए अपॉन में क्या आ जाएगा, पाई इंटू ए स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब यहाँ से जो टर्म्स कैंसिल हो सकते हैं उनको कैंसिल कर देते हैं, म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, एक ए कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली हमें यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो h की जो अप्रॉक्स वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली कितनी आ जाएगी, 1.2a के इक्वल आ जाएगी। ओके, तो अप्रॉक्स ये वैल्यू क्या आएगी, 1.2a के इक्वल आएगी। तो फोर्थ में क्या होगा, ओनली सी ऑप्शन क्या हो रहा है, इससे मैच हो रहा है, सो सी इज द ओनली राइट ऑप्शन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में उसने हमसे क्या बोला है कि कंसीडर करिए कि d है ग्रेटर देन a है, d डिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा ग्रेटर है, एंड द लूप इज रोटेटेड अबाउट इट्स डायमीटर, और लूप को क्या किया जा रहा है, उसके डायमीटर के अलॉन्ग रोटेट कर दे रहे हैं पैरेलल टू द वायर के पैरेलल 30 डिग्री फ्रॉम द पोजीशन एज सोन। 30 डिग्री जिस पोजीशन में, उसे 30 डिग्री पे क्या कर दिया जाता है, रोटेट कर दिया जाता है। तो हमसे पूछा है कि आगे उसने क्या पूछा है कि इफ़ द करंट इन द वायर आर अपोजिट डायरेक्शन, अगर वायर्स में जो करंट है ये किस में हो जाए, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, तो टॉर्क जो होगा लूप के इसके न्यू पोजीशन पे क्या होगा, ये कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। ओके, तो हमें फाइनली क्या फाइंड करना है, टॉर्क फाइंड करना है। तो 5th पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, टॉर्क। तो टाउ क्या होता है हमारे पास, टाउ होता है
m क्रॉस b। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टाउ इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा कितना दिया है, 30 डिग्री दिया हुआ है। ओके, तो m क्या होता है, i इंटू ए एरिया ऑफ लूप पाई ए स्क्वायर इंटू बी ये हमारा कितना आ जाएगा, दोनों वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, 2 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन में क्या होगा 2 पाई डी इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो टॉर्क यहाँ से कितना आ जाएगा, ये टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से म्यू नॉट आई स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा 2d। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से देखें अगर फिफ्थ क्वेश्चन का, तो बी ऑप्शन क्या हो रहा है, इससे मैच कर रहा है। सो बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, Which of the following statement is are correct in the given figure? इस क्वेश्चन में हमें एक फिगर गिवन है जिसमें हमारे पास एक वायर है ए बी सी डी, जिसमें एक I2 करंट ऐसे फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और हमारे पास एक करंट सोर्स है जिस I1 करंट फ्लो हो रहा है, जिससे I करंट का सिंबल होता है, इसीलिए ये करंट सोर्स होगा। और इसकी डायरेक्शन क्या है, ये क्रॉस से रिप्रेजेंट हो रहा है। क्रॉस हमें पता है क्या होता है, जो प्लेन इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर डायरेक्शन होती है, मतलब प्लेन ऑफ द पेपर के अंदर की डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। और ये चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं नीचे। नेट फोर्स ऑन द लूप इज 0, नेट टॉर्क ऑन द लूप इज 0, लूप विल रोटेट क्लॉकवाइज, लूप विल रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो लूप है इस पर फोर्सेस लगेंगे तो कैसे लगेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, और स्ट्रेट कंडक्टर अपने आसपास कंसेंट्रिक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट करता है। मतलब अब ये स्ट्रेट कंडक्टर इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर है, तो इस प्लेन में ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी। वो किस तरह की होंगी, इस तरह की सर्कुलर कंसेंट्रिक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। ऐसी सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी हमारे पास, और इसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अपने थंब को इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर की डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे, तो हमारी जो फिंगर्स होंगी वो जिस डायरेक्शन में कर्ल होंगी वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की हो जाएगी। तो वो हमारे पास इस तरह आएगी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गई। अब क्या है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये इस फिगर में हम देखते हैं, इस लेफ्ट वाली फिगर, ये लेफ्ट और राइट दोनों सेम फिगर्स हैं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये बी ए वायर के पैरेलल है, दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रही हैं, तो ये बी ए लाइन के पैरेलल है। अब हमें मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला पता है क्या होता है। मैग्नेटिक फोर्स कैसे निकालते हैं हम, है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रखा हुआ है, उस पर हम कैसे निकालते हैं, आई इंटू एल क्रॉस बी। एल क्या होता है, वायर की लेंथ होती है, और उसकी डायरेक्शन किसके अलोंग मानी जाती है, करंट की डायरेक्शन के अलोंग। और बी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। अब बी ए के लिए ये एल की डायरेक्शन हो गई, और बी क्या है, हमारी सर्कुलर ही है मैग्नेटिक फील्ड है। तो बी ए और बी दोनों ही पैरेलल हो गई हैं, तो इसके लिए मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि एल क्रॉस बी, अगर एल और बी दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा। तो हमारा एफ बी ए इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ऐसे ही जो सी डी सेगमेंट है उसके लिए क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है और इसमें करंट इस तरह जा रहा है, तो मतलब ये दोनों एंटी पैरेलल हो गए। एंटी पैरेलल के लिए भी हमें क्या पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है, तो सी डी सेगमेंट पे भी फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा, एफ सी डी भी 0 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं
देख सकते हैं कि ये, अब हम BC के लिए देखते हैं। BC पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह जा रही है, इस तरह जा रही है, और करंट इस तरफ जा रहा है। L क्रॉस B की डायरेक्शन क्या हो गई, L की डायरेक्शन ये हो गई, ये L की डायरेक्शन हो गई, ये B की डायरेक्शन हो गई। अब राइट हैंड रूल से हम क्रॉस प्रोडक्ट L क्रॉस B की डायरेक्शन निकालेंगे। अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करेंगे L से B की तरफ, तो हमारा जो राइट हैंड का थंब है वो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर पॉइंट करेगा। तो मतलब BC सेगमेंट के लिए ये मैग्नेटिक फोर्स आउट ऑफ द प्लेन एक्ट करेगा। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं कि AD जो सेगमेंट है उस पर क्या होगा, उस पर इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा। अब BC और AD दोनों ही करंट सोर्स I1 के लिए सिमेट्रिकली लोकेटेड है, ये हम फिगर में देख सकते हैं। तो इन पर लगने वाले फोर्सेस हैं वो सेम ही मैग्नीट्यूड के होंगे। अगर इस पर F लग रहा होगा फोर्स बाहर की तरफ, तो इसकी तरफ इस सेगमेंट पर अंदर की तरफ F लग रहा होगा। तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन के हैं और सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस हैं। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, सेम पॉइंट पर नहीं लग रहे, दोनों डिस्टेंस पर लग रहे हैं। तो ये दोनों मिलकर एक कपल बनाएंगे। अब कपल ऑफ फोर्सेस हमें पता है कि टॉर्क प्रोड्यूस करता है किसी भी बॉडी पर, तो ये एक टॉर्क हो जाएगा। इस पर नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगा कि इस सेगमेंट पर जीरो है, इस सेगमेंट पर भी जीरो है, इस सेगमेंट और इस सेगमेंट पे फोर्सेस है पर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स ऑन द लूप जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। पर क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट फोर्सेस सेम पॉइंट पे नहीं लग रहे हैं, ये डिफरेंट पॉइंट्स पे लग के कपल बना रहे हैं, तो नेट एक टॉर्क बन जाएगा। तो नेट टॉर्क ऑन द लूप जीरो नहीं हो पाएगा, तो ऑप्शन 2 इनकरेक्ट हो जाएगा। अब टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है तो उससे क्या होगा, ये जो वायर है ABCD ये इस O डैश एक्सिस के अबाउट रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। अब अगर मेरे पास ये Y एक्सिस है, ये X एक्सिस है और ये Z एक्सिस है, तो हम O से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, ये जो वायर है ये YZ प्लेन में रोटेट कर रही है। और किस डायरेक्शन में रोटेट कर रही होगी, ये एंड बाहर की तरफ जा रहा है, ये एंड अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये हमें क्लॉकवाइज रोटेट करती हुई दिखेगी। तो O से अगर हम देख रहे हैं तो हमारे पास ये क्लॉकवाइज रोटेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 भी करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन कौन से हो गए, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3 आर द करेक्ट ऑप्शंस। Hello students, our question is in a hydrogen atom, the electron moves in an orbit of radius 0.5 angstrom making 10 raised to the power 16 revolutions per second. The magnetic moment associated with the orbital motion of the electron is. So solution for this will be, first of all we will calculate the current I. So I is given by Q upon T, and Q is equals to Ne upon T. So if we put the values, N is 10 raised to the power 16 and E is 1.6 into 10 raised to the power minus 19 divided by 1, okay, per second. Now from this I will be equals to 1.6 into 10 raised to the power minus 3 angstrom, okay, sorry, ampere, not angstrom. R is given 0.5 angstrom. So if we talk about magnetic moment, so magnetic moment is given by M is given by I into A. So if we put the values, M will be equals to I is 1.6 into 10 raised to the power minus 3 into pi r square. Okay,
So if we put the value of r, m will be equals to 1.6 into 10 raised to the power minus 3 into 3.14 into 0.5 into 10 raised to the power minus 10 whole square. On solving, we will get m is equals to 1.25 into 10 raised to the power minus 23 ampere meter square, and this is our answer. Thank you. इस क्वेश्चन में दिया गया कि कोई वायर है जिसकी लेंथ क्या है, एल मीटर है, कैरिंग अ करंट आई एम्पियर, इज बेंड इन अ फॉर्म ऑफ सर्किल. उसको क्या कर दे रहे हैं, बेंड करके बना दे रहे हैं सर्किल. ठीक है, मोड़ के उसको सर्कुलर रीजन, सर्कुलर सर्किल बना दे रहे हैं. द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज, कह रहा है कि इसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होगा वो क्या होगा. ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. तो ये वायर है हमारा, इनिशियली क्या है, ये एक वायर हो गया जिसकी लेंथ कितनी है हमारे पास, जिसकी लेंथ है एल. ओके, ये कैपिटल एल है, नॉट स्मॉल एल. ओके, ये क्या हो गई, इसकी लेंथ एल हो गई. अब इसको बेंड करके क्या बना दिया गया, सर्किल बना दिया गया. ठीक है, तो जब सर्किल बना दे रहे हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इसका पेरीमीटर होगा ये क्या होगा, 2 पाई आर, ये इक्वल होगा किसके, एल के. ठीक है, तो ये हमने स्मॉल आर मान लिया कि इसका क्या है, रेडियस है, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल अपॉन 2 पाई. ठीक है, अब मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है एम इक्वल्स टू आई इंटू ए. ओके, आई इंटू ए, और एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो आई इंटू पाई आर स्क्वायर. आर की जो वैल्यू आई इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, तो आई इंटू पाई इंटू एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर. ओके, तो m की जो वैल्यू आ जाएगी, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी m की आई एल अपॉन 4. तो क्या आ गया, l, हाँ यहाँ एल स्क्वायर भी होगा. ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, मैग्नेटिक मोमेंट आ गया. यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था उस सर्किल के लिए जिसमें आई करंट फ्लो कर रही है. ठीक है, तो यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है. इस क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई यूनिफॉर्म कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है और डायरेक्ट हो रहा है कितने पे, 45 डिग्री एंगल पे फ्रॉम द एक्स एक्सिस. ओके, एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पर है. पी क्यू आर एस इज रिजिड. पी क्यू आर एस जो ये लूप है ये क्या है, रिजिड है, स्क्वायर वायर फ्रेम है, कैरिंग स्टेडी करंट आई नॉट. इसमें आई नॉट करंट क्या करिए, फ्लो करिए विथ इट सेंटर एट द ओरिजिन एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 द स्टेम स्टार्ट इन द, ये हाँ, तो ये जो फ्रेम है एट टी इक्वल्स टू 0 फर्स्ट इन द पोजीशन जैसे दिखाया हुआ है उस पोजीशन में है. ओके, विथ साइड्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. इसकी साइड्स क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल है. ईच साइड ऑफ द फ्रेम इज ऑफ मास m एंड लेंथ l. जो साइज है, ईच जो साइड है उन फ्रेम की, उसका मास m है और लेंथ क्या है, l है. व्हाट इज द टॉर्क, जो टॉर्क है इस पे लग रहा है, टॉर्क अबाउट ओ पॉइंट के अलॉन्ग कितना टॉर्क लग रहा है इस फ्रेम पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है. ओके, और बी पार्ट में क्या बोला है कि फाइंड द एंगल बाय विच फ्रेम रोटेट अंडर द एक्शन ऑफ दिस टॉर्क इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ डेल्टा टी. वो एंगल हमें फाइंड करना है इस टॉर्क की वजह से, शॉर्ट टाइम डेल्टा टी की वजह से, कि जो रोटेट करे अंडर द एक्शन ऑफ तो आगे क्या बोला है, एंड द एक्सिस अबाउट दिस रोटेशन ऑकर, और किस एक्सिस के अबाउट ये रोटेशन ऑकर किया जाए ये भी हमें बताना है. बोला कि डेल्टा टी क्या है, काफ़ी शॉर्ट है और मे बी नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं. गिवन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्रेम अबाउट एक्सिस, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है फ्रेम का, ये इस सेंटर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, सेंटर के परपेंडिकुलर टू प्लेन कितना दिया है, 4/3 ml स्क्वायर दिया हुआ है. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितना बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है. ओके, तो इसके क्या होंगे, दो कंपोनेंट होंगे. मान लिया मैंने कि बी एक्स जो कंपोनेंट है वो क्या होगा हमारा, बी कॉस 45 डिग्री, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, b/√2. ओके, सिमिलरली हमें क्या मिलेगा, y कंपोनेंट मिलेगा b कॉस 45 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी, b/√2 होगी. ओके, ये दो वैल्यू आ गई. और यहाँ पे इसको हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं.
वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो वेक्टर बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी बाई रूट टू आई कैप प्लस बी बाई रूट टू जे कैप। ये हमारा क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म हो गया। और मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा इस लूप के लिए, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, तो एम इक्वल्स टू क्या होता है, आई इंटू ए होता है। तो आई में कितनी करंट फ्लो कर रही है, आई नॉट करंट फ्लो कर रही है। और इसका एरिया क्या होगा, तो स्क्वायर जो है उसकी लेंथ एल दे रखी है, और उसका एरिया करने के लिए हमें क्या होगा, लेंथ का स्क्वायर करना होगा, आई नॉट इंटू एल स्क्वायर। और ये किस डायरेक्शन में आएगा, तो ये इसका परपेंडिकुलर टू प्लेन आएगा। तो परपेंडिकुलर टू प्लेन कौन सा डायरेक्शन है, के कैप डायरेक्शन है। तो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट जो है ये क्या आ जाएगा, आई नॉट एल स्क्वायर के कैप आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा मैग्नेटिक मोमेंट। अब हमें क्या फाइंड करना है, टॉर्क फाइंड करना है। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है एम क्रॉस बी। मैग्नेटिक मोमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट होता है किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो हमें क्या मिलता है, टॉर्क मिलता है। अब यहाँ पे हम मैग्नेटिक मोमेंट और इनका क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, आई नॉट एल स्क्वायर के कैप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, बी बाई रूट टू आई कैप प्लस बी बाई रूट टू जे कैप। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब दोनों का क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। तो जब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ k क्रॉस आई का पहले इसके साथ होगा और फिर k का j के साथ होगा क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, पहले मिलेगा हमें आई नॉट एल स्क्वायर, k क्रॉस आई क्या होता है, j होता है। ओके, तो ये आ जाएगा b बाई रूट टू जे कैप, और उसके बाद k क्रॉस j क्या हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। और एंटी क्लॉकवाइज के लिए हमें क्या लेना होगा, नेगेटिव साइन लेना होगा। तो ये आ जाएगा माइनस आई नॉट एल स्क्वायर बी बाई रूट टू आई कैप। ये आ गया हमारे पास टॉर्क। तो अब इस टॉर्क को यहाँ से क्या करते हैं, ये जो टर्म कॉमन है उनको बाहर निकाल लेते हैं। तो टॉर्क क्या आ जाएगा, आई नॉट एल स्क्वायर बी बाई रूट टू जे कैप माइनस आई कैप। ये हमारा क्या आ गया, टॉर्क आ गया। ओके, तो ये जो टॉर्क हमारे पास आया है इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, तो इस मैग्नीट्यूड के लिए हमें क्या करना होगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होगा। और इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, रूट टू आएगा। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, आई नॉट एल स्क्वायर बी। ये हमारा क्या आ गया, टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ गया। और इसका डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, राइट हैंड रूल का यूज़ करते हैं। तो एम क्रॉस बी, एम से बी के क्रॉस करेंगे तो अपना राइट हैंड क्या करते हैं, एम के डायरेक्शन में रखते हैं, फिर अपने फिंगर्स को कर्ल करते हैं बी के डायरेक्शन में। तो टॉर्क जो आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, क्यू एस, दैट इज क्यू टू एस। ये क्या होगा, इस डायरेक्शन में हमारा टॉर्क एक्ट करेगा। ओके, अब बोला है कि सेकंड केस में कि फाइंड द एंगल बाय विच इसको क्या किया जाए, रोटेट किया जाए शॉर्ट इंटरवल के लिए। ओके, तो इस टॉर्क की वजह से रोटेशन जो होगा वो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और कितना एंगल रोटेट करेगा ये भी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले उसने क्या दे रखा है, हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो किस एक्सिस के अलॉन्ग दिया हुआ है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलॉन्ग दिया हुआ है। और हमें फाइंड करना है क्यू एस के अलॉन्ग। तो क्यू एस के अलॉन्ग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसको हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैं लिख सकता हूँ आई क्यू एस, ये इक्वल हो जाएगा 1/2 आई जेड। ये क्या है, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज़ किया गया है। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, आई जेड जो आएगा, सॉरी आई जेड हमें गिवन है और हमें 1/2 आई जेड की वैल्यू कितना दिया है, 4/3 ml स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू गिवन है। तो ये कितना आ जाएगा, 2/3 ml स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया किसके अलॉन्ग, क्यू एस एक्सिस के अलॉन्ग आ गया। अब क्या करते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया हमें, तो टॉर्क भी पता है। तो टाउ इक्वल्स टू क्या होता है, आई अल्फ़ा। ओके, तो यहाँ से अल्फ़ा कैलकुलेट करते हैं। अल्फ़ा क्या आ जाएगा, टाउ अपॉन आई। तो टॉर्क कितना लग रहा है, टॉर्क लग रहा है आई नॉट एल स्क्वायर बी। ओके, और अपॉन में आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो लग रही है
2/3 ml²। तो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा हमें, 3/2 L² कैंसिल हो जाएगा, I0B अपॉन में m। ये क्या हमारा आ गया, अल्फ़ा आ गया। और अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। ओके, अल्फ़ा क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन यूज कर सकते हैं थीटा, क्योंकि स्मॉल एस जो उसमें रोटेशन की वजह, टॉर्क की वजह से जो रोटेशन हो रहा है, तो वही हमें फाइंड करना है। तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फ़ा t²। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी, 0 है। ओके, ओमेगा नॉट क्या है, 0 है। तो थीटा की जो वैल्यू होगी ये क्या हो जाएगी, थीटा इक्वल्स टू 1/2 अल्फ़ा t² होगा। अब यहाँ से 1/2 अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, अल्फ़ा की वैल्यू आई है 3/2 I0B अपॉन m इंटू डेल्टा टी का होल स्क्वायर। टाइम दिया है हमारे पास डेल्टा टी। ओके, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं कि जो थीटा आएगा ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 ये अपॉन 2 है यहाँ पे। ओके, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 3/4 I0B अपॉन m डेल्टा टी का होल स्क्वायर। ओके, तो टॉर्क की वजह से जो रोटेशन प्रोड्यूस होगा वो कितना रोटेशन होगा, तो ये वैल्यू है हमारी थीटा की। डेल्टा टी अगर टाइम हम मेज़र करें यहाँ पे थोड़े समय बाद, तो जो हमारा ये लूप है ये इतना एंगल क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा। तो यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। यही हमें फाइंड करना था कि डेल्टा टी टाइम में लूप इस टॉर्क की वजह से कितना रोटेट करेगा। तो यही आंसर है। हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्या कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो ग्राउंड स्टेट में है, किसकी ग्राउंड स्टेट में, हाइड्रोजन एटम का, ठीक है, जो रिवॉल्व कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, और उस ऑर्बिट की रेडियस कितनी है, आर है। हमें फाइंड क्या करना है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है, किसकी, जो इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमें देखते हैं इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे। तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो क्या होता है, हम लोग लिखते हैं NIA। ठीक है, यहाँ N क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी और ये किसके बराबर होगा, I इंटू A के बराबर होगा। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो हमें I चाहिए और A तो इस ऑर्बिट की एरिया कितनी हो जाएगी, पाई r²। क्यों, क्योंकि इसकी रेडियस r गिवन है, तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई r²। अब हम देखते हैं हमें क्या फाइंड करना, I। ठीक है, I फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बोर सेकंड पोस्टुलेट का यूज करने वाले हैं। ठीक है, बोर सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर किसी एटम के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, क्या, एंगुलर मोमेंटम, वो किसके बराबर होगा, NH/2 पाई के बराबर। ठीक है, और अगर उस पार्टिकल की मास m है और वो v वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है कितनी रेडियस में, r रेडियस में, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr। और यहाँ पे n की वैल्यु कितनी हो जाएगी, 1। क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन और ये फर्स्ट ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, मतलब ये किसके बराबर होगा, H/2 पाई के बराबर। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, n = 1 होगा फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो ये यहाँ तक कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। तो यहाँ से हमारी जो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, H/2 पाई r इंटू m। ठीक है, ये किसकी वैल्यू होगी, वेलोसिटी की वैल्यू होगी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमें क्या फाइंड करना है, करंट। हमें पता है कि करंट क्या होता है, करंट जो होता है वो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब आई जो क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट मीन्स ई क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन जो चार्ज, ये कितनी वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, v वेलोसिटी से, और डिवाइडेड बाय अगर हम टोटल लेंथ 2 पाई
आर कर देते हैं तो ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हमें देगा, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, ई इंटू वी का वैल्यू कितना हम लोग फाइंड किए, एच अपॉन 2 पाई आर इंटू एम, ठीक है, इंटू 2 पाई आर। तो फाइनल जो हमें आई की वैल्यू मिलने वाली है यहाँ से क्या मिलने वाली है, ई एच अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एम, ठीक है। ये क्या है, करंट है। हमें फाइंड क्या करना था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, आई अपॉन 2 पाई, हमें फाइंड क्या करना है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है तो आई इंटू ए होता है। आई की वैल्यू कितना हम लोग फाइंड किए, ई एच अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एम, ठीक है। और हमें ए की वैल्यू पता है क्या है, पाई आर स्क्वायर। जब आप यहाँ से कैंसिल करोगे तो आपके पास पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचने वाला है, ई एच अपॉन 4 पाई एम, और ये किसकी वैल्यू होगी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो हमें फाइंड करना है, ई एच अपॉन 2 पाई। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस क्वेश्चन के लिए हम लोग कैसे फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।